Afternoon, my dear friends. I extend a very hearty welcome to every one of you for third day session on location of points as per TCM. Only 5 shoe points. Friends, as usual, before we start, let us do 3 minutes of meditation and then I'll hand over the session to our beloved faculty, Mrs. Shamla ji and Mrs. Nisha ji. And so we'll do the meditation. I request every one of you to please sit straight. Let your vertebrae be straight. The voice is low, sir. Legs crossed, hands folded. Either you can keep your hands in chin mudra or like this, like this. Like you might have seen Ramakrishna Paramahamsa, how he used to keep his hand. Like that. So that will protect your aura, energy. Now, we have to simply observe the thought. When we witness the thought, flow of thought, we are witnessing the mind. Mind will shy away. Flow of thought becomes zero. When there is no mind, your state of mind will come down from beta to alpha, theta, delta, etc. In other words, not only you'll be alert and cautious, your awareness level will improve. Automatically, your parasympathetic nervous system will be triggered by doing this meditation. Before we know what is parasympathetic nervous system, it is better to understand what is sympathetic nervous system. We all do meditation many times without knowing the benefits of it. Though our elders, enlightened people always suggest to do meditation, many people doesn't have the clarity as to why we have to do meditation. Friends, in our nervous system, we have sympathetic and parasympathetic. It has been divided into two, branches. In sympathetic nervous system, what happens? When the sympathetic nervous system is triggered, it directs the body's rapid voluntary response to dangerous or stressful situation. In other words, when you are under stress, anger, anxiety, tension, it means that your sympathetic nervous system is overactive. At that point of time, a flash flood of hormones boosts the body's alertness. It increases heart rate, palpitation, sending extra blood to the muscles. You will reach a situation wherein you can fight or flight. It is called fight or flight situation. See, imagine you are returning from a night show film and you are close to your house, nobody is there on the road. Suddenly, a couple of gundas or somebody comes and they have weapons in their hand. Okay, what will happen to you? What will be your reaction? So naturally, you'll be fear. No, you have fear. You have sweating. You have tension. You become over alert. Your anxiety level will shoot up. Palpitation will increase. Because of that, you can run faster. Some people even, urination, loose motion may happen. Is it not? It is an indication that your sympathetic nervous system is overactive. When your sympathetic nervous system is overactive, you cannot sleep, digest well. Okay, because
everything becomes dry. Is it not? Friends, half the disease our is due to overactive of sympathetic nervous system. Because, you know, it'll, when you are under stress, anger, anxiety, tension, food will remain for a longer period in the stomach, creating excess heat. The direction of flame is upwards. Food will not go downwards. Your pH factor get disturbed. Whatever we eat is, you know, with the help of saliva, it is broken to make plasma very fast. Plasma should contain 80% alkaline, 20% acidic, called pH factor. But when your sympathetic nervous system is overactive, what happens? Food is not digested, resulting in acidity, gastritis, sugar, BP, even thyroid. Half the disease of mankind is due to this. When you meditate, when you observe your mind, mind becomes cool and calm. Without our knowledge, we'll be activating the parasympathetic nervous system, which will enable you to become cool and calm. Your tension will go away. You become mentally free, as if you are in a holiday. Happy mind. You'll enjoy more. You can relax more. You can sleep more. You can eat more. Your digestion will be proper. Your vagus nerve will be activated. Your relaxation system will improve. In other words, this is the benefit of, you know, meditation will also bring you to the same situation. Your tiredness will go away and your perception level will certainly improve. In the days to come, we shall also discuss about other benefits of meditation, because I don't want to take much of your time. Today's our topic is different. So friends, don't allow any thoughts to crop up. When you observe when you witness your thoughts, mind becomes calm. You have a grip over your mind. Now gently rub your palms, make a cup out of it, close it on your eyes, slowly open your eyes. Friends, on behalf of every one of you, I once again welcome our beloved faculty of today's and tomorrow classes, Mrs. Shamla Shukla ji and Nisha Gupta ji, for another captivating session on location of 5 shoe points according to TCM. So far we have learned the meridians located on index finger or on our hand, which was explained very well in the simplest possible manner. Not only the location, even the benefits, the characteristics, features of every point was explained very well. So I'm sure everyone will enjoy the session, and I hand over the session to our faculties. Welcome, madam. Namaste. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for the warm welcome. Before we start the session, let us invoke the energy of Creator of all that is and take the blessings of Khemka sir, JP Agarwal sir, Ravindran sir, and our parents. Well, friends, we have already completed 6 meridians, and this is the 3rd day of our session. And also, if I ask you, I will ask that later. But before we start the session and explaining about the points, the location of the points on the body and on the beyond, I would like to call Nisha ji. Okay. Thank you, sir. Thank you, Lindra sir. हम माता प्रसाद खेमका जी की सूक्ष्म अनुभूति को महसूस करते हुए एंड
वर्तमान अध्यक्ष श्री जेपी अग्रवाल सर जी की आशीर्वाद के साथ अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको 2 दिन का पता ही है, आपने बड़े अच्छे से सुना समझा सारी दोनों क्लासेस को। तो आज आपको पता है कि लीवर मेरिडियन एंड स्प्लीन मेरिडियन एंड किडनी की हम बात करेंगे। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए। सारी ऑर्गन है इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी अपनी जगह पर, ये इनके बिना तो काम ही नहीं चलता। इनको मैं आज ओरिजिनल पे अभी बताती हूँ। पहले उससे पहले आप ये देख लीजिए, समझिए कि ये इन ऑर्गन है और बैक साइड पे हमने बताया था कि यांग ऑर्गन है। जो इन ऑर्गन है ये वाले जो आज हम बात करने वाले हैं, इनकी पैरों से यानी कि इन एनर्जी हमेशा अर्धली एनर्जी होती है, तो ये पैरों पे ही स्टार्ट होती है। पैरों से स्टार्ट होके ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। तो मैं आपको पैरों से उनको स्टार्ट करने का प्रयास करती हूँ। अगर आपको एक सेकंड बस। पैर मेरा अच्छे से दिख रहा है, तो आपको हम दिख रहा है बहुत अच्छे से? यस यस यस। थैंक यू सो मच। अभी हम लीवर का स्टार्ट करते हैं। लीवर का फर्स्ट पॉइंट, लीवर 1 हमारा यहाँ पे होता है। लीवर 1 इस तरह से चलते आएंगे, तो यहाँ पे जो इस बोन के साथ साथ ये वाला है हमारा लीवर 2। देखिए लीवर 3 जो है 2 तरह से बताऊंगी। एक तो दोनों ही बोन को इस तरह से आप लेते आएंगे, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे पेन भी काफी होता है, मोस्टली ये एरिया पेनफुल ही होता है। एक तो ये स्टाइल। दूसरा स्टाइल है, देखिए यहाँ से आपने ये वाली इतनी फिफ्थ जॉइंट तक का इसको इस तरह से रखा, इस जगह से लीवर 2 से इस जगह ऐसे रखोगे, तो यहाँ पे आप टच करोगे तो ये लीवर 3 बहुत आसानी से जो लोकेट हो सके। कई बार नहीं आप बोन को पकड़ पाते, तो ये देखिए ऐसे, ये आपका लीवर 3 है। इसी तरह से इसी बोन के साथ साथ ही चलते आएंगे, तो आपको अपने पैर को मेरे साथ साथ आप प्लीज कीजिए, ताकि आपको लोकेशन सदा ध्यान रहे और सदा कभी भूलो ना। इस बोन को इस तरह से जब आप पैरों को ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे एक ये देखिए ये वाला एक हड्डी सी महसूस होगी। इस हड्डी के इस साइड स्प्लीन है हमारी, इस हड्डी के बिल्कुल साथ ही ये वाला ऐसे करेंगे तो डिप्रेशन यहाँ पे फील होगा। डिप्रेशन से पहले नहीं, ये एंकल के ही ऊपर आता है, ये लीवर 4 है। ये देखिए मैंने जब पॉइंट लगाया है तो आप यहाँ हड्डी उभरी हुई दिख रही है, लीवर 4। अब लीवर 8 को मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि इसी बोन से ऐसे आप चलते आएंगे। जब आप बेंड कर लेंगे ना अपनी, ऐसे आप पूरी तरह से बेंड कर लेंगे। इस तरह इस इतने ही पोर में आप ये वाला एरिया क्रीज एरिया आपको दिखेगा। यहाँ से आप ऐसे क्रीज से बिल्कुल घुटने की जो ये क्रीज होती है, वहां से आप ऊपर की तरफ ऐसे हाथ रखेंगे, तो ये है आपका लीवर 8। इस वाली देखिए पटेला एरिया, जो पटेला बीच में पटेला होता है, पटेला के बिल्कुल इस तरह से आएगा ये पॉइंट। यहाँ एक बार फिर से देखिए, लीवर 1 2 को और 1 को लोकेशन तो बहुत इजी है। देखिए ये है नेल के पास कॉर्नर में, ये है इस बोन पे। ये वाला पॉइंट बहुत पेनफुल होता है। लीवर 2 जिनके फैटी लीवर होता है उनको टोन करना पड़ता है यहाँ पे, तो इसमें पेन उनको मिलेगी ही मिलेगी। लीवर 3 जिनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई सी दिक्कत है, निशान लगाना होती है, ये वाला कहीं भी कोई खाना नहीं पच रहा है या कोई गैस बनती है, तो उनको यहाँ पे बहुत पेन मिलता है। और फिर इसी जगह पे यहाँ देखिए मैंने आपको बताया
इस तरह से करते हुए आपको लीवर 4 मिलेगा और लीवर 8 इस पटेला के बिल्कुल इसी जगह पे, ठीक है, 4 9 यहाँ। अब आते हैं स्प्लीन। स्प्लीन का फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पे देखिए ये माउंटेन है, बिफोर माउंटेन, ऐसे आप देखिए करके तो आपको ये माउंटेन दिखेगा। ये यूरिक एसिड का बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद ये माउंटेन क्रॉस करते ही हमारा, इसको भी ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको माउंटेन फील होता है। ये हमारा sp3 मेटाबॉलिज्म का, फैट जिनको जमती है उनको पूर्ण करना पड़ता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है उनके लिए। आगे बढ़ते जाएंगे तो जो मैंने आपको यहाँ लीवर के पास ही बताया था, ये बोन आ रही है हमारी, बोन के बिल्कुल देखिए यहाँ आपको इस तरह से करना पड़ेगा पैर को कई बार, ताकि वो बोन आपके हाथ में आए वो पॉइंट। तो ये पॉइंट, ये डिप्रेशन है हमारा। A6 और स्प्लीन 5 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा पास पास ही है। ये है हमारा sp5। अब sp9 के लिए आपको इसी तरह से इतनी ही टांग मोड़नी है हमेशा, कोशिश अच्छे से। और देखिए इतनी सी टांग ऐसे की, और जैसे लीवर के लिए तो हमने ऐसे फोल्ड किया था और इस तरह से रखी थी फिंगर, स्प्लीन के लिए आपने इतनी हाफ टांग ही फोल्ड करनी है। और जो ये क्रीज होती है इसके बिल्कुल नीचे देखिए यहाँ पे एक बोन है, उस बोन की एक और पहचान क्या है कि ये वाली जो बोन जाती है यहाँ पे बोन, पेला के नीचे ये उभरी हुई बोन होती है, बिल्कुल उसकी सीध में यहाँ पे। और इस तरह से हाथ रख के भी आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये स्प्लीन लाइन, अगर फोल्ड करोगे तो यहाँ पे आएगा। एक बार फिर से करती हूँ, sp1 sp2 3 sp5 और यहाँ से हाफ ऐसे क्रीज करते हुए इसकी सीध पे ये है हमारा sp9। अब किडनी की मेरिडियन को देखते हैं। किडनी के मेरिडियन का ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से देखना, बहुत लोग इसको गलत करते हैं, गलती से कुछ भी। ये वाली जो sp3 की माउंटेन है इसको इस तरह से लेते हैं, ये लाइन बना के दिखाती हूँ ऐसे। और जो ये वाली फिंगर है हमारी सेकंड रो, इसकी इस साथ वाली जो स्टमक वाली लाइन है, वहां से जिस जगह हम ऐसे आके रुकते हैं, ये हमारा K1 पॉइंट है, किडनी 1। उसके बाद किडनी 1 को इस तरह से इसी बहाव में ही आप ऐसे, जैसे ये ऊपर वाले ने ऐसे ही हमारे ना स्लाइड से दी हुई है, इसी तरह से इसको साथ साथ ही चलते आएंगे। उसकी पेस्ट यहाँ आके रुक जाना है। और ये है यहाँ पे हमारा sp4 है, 4 से थोड़ी सी पीछे यहाँ पे एक बोन है मोटी सी, बोन के बिल्कुल नीचे साथ ये इतना बहुत ध्यान से इसको टच करके देखिए, बोन के ऊपर नहीं है, बोन पे बिल्कुल फील होता है बोन पे है, लेकिन बोन के साथ ही एक डिप्रेशन है, गड्ढा सा है, उस पे आपने K2 पॉइंट। ये बहुत सारी चीजों के लिए है, अगर पैरों में जलन होती है तो K1 और 2 पे स्पेशल लगता है पॉइंट। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखना, ना समझ आए तो दोबारा से फिर पूछना। अब यहाँ से चलते हुए हम K3 पे पहुंचेंगे। ये हमारा मीडियल मेलुलस, देखिए मीडियल मेलुलस के जब आप पीछे की तरफ आएंगे, ये वाला मीडियल मेलुलस की ये लाइन है कि मैं आपको बता दूं, ये लाइन है हमारी मीडियल मेलुलस की। तो उसके बिल्कुल पीछे इस मेलुलस से एक थंब अंगूठे जितनी दूरी, यहाँ पे आपको ये K3 पॉइंट, ये हमारा K3, K7, यहाँ से 3 फिंगर आप जाओगे ऊपर, बिल्कुल 2 गुण दूरी दूसरी भाषा में बोल देते हैं। तो ये है हमारा K7, देखिए K3 K7 K1 K2 K3 K7। अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें पूरी तरह से आपने ऐसे घुटने को अंदर की तरफ मोड़ लेना है और इस वाली क्रीज
ये है हमारा बिल्कुल क्रीज जहां बनती है, ये है हमारा K10। बाकी पीपीटी में एक बार दोबारा की किडनी का करती हूँ। यहाँ पे K1, K2, K3, K7 3 फिंगर, उसके बाद K10। अगर थोड़ी सी भी लोकेशन में आपको नहीं समझ आया, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है ऊपर नी वाले एरिया में दिखाना, तो आपको पीपीटी की हेल्प से बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी वजह से पॉइंट क्लियर नहीं होते तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो या फिर दोबारा से पूछ सकते हो। कंटिन्यू शुक्ला जी। Okay, okay, that was wonderful. Okay, so let me start the PPT. Okay, so we all know that we have already covered 6 meridians. And we have also said to you that 3 meridians, it starts from the hand and ends at hand. 3 meridians starts from the feet and ends at feet. So today our session is all about the points, meridians, which starts from the feet. Okay, so the first meridian is liver. Now liver 1 is at the base of this nail, okay, towards the toe side, okay, and this is a wood point. Now remember, all the yin meridians, in the last class also I told you, all the yin meridians starts from wood point. This is liver 2. Now liver 2 is in between the depression, you know, of the toe and the thumb, the first toe and the thumb, and this is a fire point. This is an earth point. This is liver 3. Now again, from the thumb and the first toe, when you will, you know, go through this channel, you will find a depression here, and here it will end. Okay, so that is liver 3, and this is an earth point. This is liver 4. This is a metal point, just on the, you know, basically on the joint, and this is liver 8. You have to fold your leg, and when you will, you know, find a small crease over here. So accordingly, then you'll have to locate this point, and this is a water point. Now let us see the spleen points. Spleen 1 starts again from the base of the thumb toe, or the base of the nail, here on the outer side, and this is a wood point. This is spleen 2. Now here you will find a mount. So before this mount, this is SP2, and after this mount is SP3. This is a earth point, and SP2 is a fire point. Okay. Now SP5 is a metal point. So the location is already shared. So here it will be a little clear so that you understand the exact point. And this is SP9. Now you can see what crease Nisha ji was talking about. So when you fold your leg, so this is, you know, here you will find this, the, you know, the protrusion of the bone here. So that is SP9, and this is a water point. But let us check kidney. Kidney 1. Now again, when you will see at the sole of the foot, see here between these 2 joints, when you will come down here in the depression, we have K1, and this is a wood point. K2 is again on the border line, and you will find a bone, you know, protruding bone over here. So there you will find a depression, that is K2, and this is a fire point. Now this is K3. It is a little bit 1 thumb away from the medial malleolus. So this is K3, and this is an earth point. This is K7, 3 fingers away from the medial malleolus. This is K7, and this is a metal point. And this is K10. Now you can see the exact location. I think with the picture it is more clear. All right.
All right. Now we will be showing the same location on the Biol. Okay. So for that, Nisha ji, I hand over the session to you. थैंक्स श्यामला जी। परसों और कल हमने हैंड पे ब्योल मेरिडियन किस तरह से हैंड पे कौन सी हैंड पे प्रेजेंट होती हैं उनको बताया था, इन भी और यांग भी। इसमें फ्लो भी बताया था एनर्जी का कि किस तरह से ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड। आज हम पैरों से कौन सी मेरिडियन, जो 6 मेरिडियन पैरों से स्टार्ट होती हैं, उनमें 3 मेरिडियन की बात मैं ऑलरेडी हम जो उसमें बता चुके हैं, तो वो ब्योल पे किस तरह से आएंगी वो बताती हूँ। देखिए ये वाला जो एरिया है, ये हमारी लेग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे लीवर, स्प्लीन और किडनी, ये तीनों मेरिडियन आती हैं। उनकी लोकेशन कैसे, हाथों पे हमें लाइन ड्रॉ ही करनी पड़ेगी, वो करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे कल किया था कि पित्त जॉइंट और वात जॉइंट पे, मेरी फिंगर दिख रही है सभी को? यस यस यस। हाँ, ये इस तरह से लाइन लगा लेंगे। लीवर 1, जैसे पहले ही हम बता चुके हैं कि इस तरह से लाइन ऊपर वाली, ये ऊपर वाला एरिया छोड़ देना है। यहाँ पे लीवर 1 आएगा हमारा, यहाँ साथ ही बिल्कुल लीवर 2, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर में। बिल्कुल जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना हमारा, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर ही आता है, वो आपने पहचान कैसे करनी है? जो ये वाला उभरा हुआ पार्ट होता है सबके, हर एक फिंगर पे ही होता है, ये देखिए ये वाला और ये, इसको लोकेट करते हुए आपने लीवर 3 की लोकेशन लेनी है। ये लीवर 3 है, ये लीवर 2 है, 1 2 3। अब लीवर 4 बिल्कुल वात जॉइंट पे, लीवर 4 से आपने इस तरह से, ये एनर्जी हमारी यहाँ से आके घूम जाती है, यहाँ पे आपको लीवर 8 मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, लीवर 4 एंड लीवर 8 सेंटर में। अब स्प्लीन, स्प्लीन का थोड़ा सा जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर आता है, थोड़ा सा ऊपर, लिटिल, इतना सा बस, क्योंकि लाइन मेरी थोड़ी सी गलत लगी। स्प्लीन 1, स्प्लीन 2, ये भी साथ साथ ही है। और जो ये हमारी लाइन है स्प्लीन 3, SP3, 1 2, आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। मैं एक मिनट अभी बताती हूँ लाइन लगा के। वन और 2, फिर सेंटर में ये 3, SP3, यहाँ पे सेंटर में SP5। जिद्दी कफ का ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जितनी भी बच्चों को कफ वगैरह खांसी वगैरह हो जाती है, SP5 पे सिलेक्ट करते रहो, बस रेड कलर लगा दो तो भी ठीक हो जाता है। SP1 2 3 5 एंड SP9, ये भी एनर्जी यहाँ से इनका थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है। ये देखिए SP9, ये जो बॉर्डर है ये वाली लाइन, इसके लिए जरा सा एक पेन की नोक जितना सिर्फ ऊपर है, पेन की नोक जितना। अगर बड़ा मैग्नेट लगाते हो तो वो इस पे ही आ जाएगा साथ में। इसके बाद आते हैं, ये एक बार फिर से बता दूं, SP1, SP2, SP3, SP5, SP9। अब किडनी, जैसे यहाँ पे ये देखिए ये ऊपर वाला एरिया, ये है हमारा K1, इसके सीध में K2, K3, यहाँ पे लोकेशन हमारी चेंज है, K3 हमारा यहाँ पे है, K3, K7 जरा सा साथ नीचे, K7,
अगर टेप पे लगाते हैं तो दोनों मैग्नेट इकट्ठे ही लगाते हैं, K3, K7, K10, ये बिल्कुल इसी बॉर्डर पे, 5th जॉइंट के बॉर्डर। फिर से देख लीजिए, K1, K2, K3, K10, K7 सॉरी K10। अब देखिए यहाँ पे एक मेथी पट्टी से काम चल सकता है, एक मैग्नेट की स्ट्रिप से काम चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है और यहाँ पे भी चल सकता है। बस थोड़ा सा एक जगह यहाँ पे मैग्नेट की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सारा वॉल पे इतना इजी है ये वाली लोकेशन। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया या कोई? देखिए क्लियर है। कैमरे से पता नहीं, मेरे आज लाइट नहीं है यहाँ। हाँ, आप मेरे साथ एक बार फिर से दोहराएं। एक चीज और मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि आपको ये चीजें ना हैंड पे अपने याद करने की कोशिश करें, जो मैंने जैसे किया। मैं उसी तरह से चाहती हूँ कि आप लोग शायद बहुत अच्छे से समझ पाए। इसको वुड, इसको फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, देन वुड। मैं इसी तरह से दिमाग में इनको लेके चलती रहती हूँ, तो मुझे कभी भूलता नहीं, हमेशा दिमाग में रहता है। इसी तरह जैसे हमने ये फ्लो की बात की थी कि ये हमारे हैंड्स, ये हमारी लेग्स, इसका फ्लो अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड, फिर यहाँ से अपवर्ड, इसकी कल चर्चा होगी। यहाँ डाउन फेस पे आया, फेस से 3 मेरिडियन को उठाया, फिर यहाँ से डाउनवर्ड, फिर यहाँ से अपवर्ड जाते हुए यहाँ पे खत्म इनकी एनर्जी। फिर यहाँ से हमारी देखिए आज वाली मेरिडियन की एनर्जी यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हुई और यहाँ पे हमारे हिसाब से शू पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे खत्म, एल्बो जॉइंट। ये तो हुआ फ्लो। अब इनके महत्व को समझते हैं कि किडनी, लीवर एंड स्प्लीन, बॉडी के तो सारे ऑर्गन बहुत वैल्यूएबल हैं, कोई ऑर्गन भी कम नहीं है किसी से भी, लेकिन ये 3 ऑर्गन अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा कोई ना कोई एग्जांपल देती हूँ, जरूर एग्जांपल के थ्रू आपको इजी वे में लेमैन की तरह कोशिश करती हूँ कि अच्छे से समझ आए जो बात मैं बताना चाहती हूँ। तो आज भी हम उसको एक सिंपल सी वे में देखते हैं कि ABC। ABC का क्या है? एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच आप लोगों को पता नहीं कि कहाँ से एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच आ गया। ये मेटाफिजिकल वे में बता रही हूँ कि एक कार है, कोई भी व्हीकल कुछ भी ले लो आप, तो उसका एक्सीलेटर भी चलना चाहिए, ब्रेक भी होनी चाहिए और क्लच भी होना चाहिए। सारे तीनों ही बहुत वैल्यू रखते हैं, पर उसमें क्लच के नीचे लिख लें लीवर, ब्रेक के नीचे लिख लो किडनी एंड एक्सीलेटर के नीचे स्प्लीन। इसी तरह से हमारी बॉडी में ये काम करते हैं। अगर आपका क्लच नहीं होगा या क्लच खराब हो गया तो आपकी गाड़ी बिल्कुल बेकार नहीं चलेगी, और अगर क्लच आपका ठीक है, डिस्टर्ब नहीं है, तो एक्सीलेटर पे भी काम सही रहेगा, अदरवाइज वो भी गड़बड़ हो जाएगा। क्लच से स्टार्ट किया, एक्सीलेटर पे पहुंचे, रेस बढ़ी, ब्रेक लगी, ब्रेक अगर खराब हो गई तो खराब। मतलब इनकी जैसे अलाइनमेंट बनी रहनी चाहिए, ऐसे ही हमारी बॉडी की अलाइनमेंट पूरी बनी रहनी चाहिए। उसको आप बॉडी के हिसाब से बताती हूँ फिजिकली किस तरह से हम फिर मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ। लीवर, पहले जो क्लच है, क्लच को स्टार्ट करना है तो लीवर को स्टार्ट करना पड़ेगा। लीवर के हिसाब से आपकी बॉडी के ग्लूकोज को अगर कोई स्टोर करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट करके लीवर अपने पास स्टोर करके रखता है, ताकि आप, क्योंकि हर चीज में, हर खाने में ग्लूकोज है और ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि सेल को जरूरत है, सेल उनको कन्वर्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें ग्लूकोज की जितनी ज्यादा जरूरत रहती है बॉडी में, उतना ही हमारी बॉडी ग्लूकोज लेती है। या तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है एक्सेस ग्लूकोज, अगर बचा रह जाता है, नहीं निकाल पाती किडनी या किसी ज्यादा हम लेते हैं ग्लूकोज, तो फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर अपने पास स्टोर कर लेता है। सबसे बड़ी ये लीवर की हमारे शरीर के लिए हेल्प। अगर वो ग्लूकोज को नहीं लेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में रह जाएगा, तो आप देखिए कोई भी वेसल, कोई भी, सॉरी वेसल तो बॉडी में है, कोई भी आप डिब्बा लें, उसमें चीनी पड़ी रहे तो डिब्बा गल जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह हमारे वेसल्स, अगर उनमें ग्लूकोज पड़ा रहेगा, नहीं लीवर मदद करेगा, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स गलने शुरू हो जाते हैं। ये तो एक हुआ लीवर का सिस्टम। और लीवर का ब्लड, हमारी बॉडी में जितना ब्लड है पूरा दिन हम उससे एक्टिवेट रहते हैं। नाइट टाइम में क्या है कि हमारी बॉडी से ब्लड
लीवर के पास पहुंच जाता है। लीवर उस ब्लड को अपने पास स्टोर करता है, सारी रात वो अपने पास स्टोर रखता है। अगर वो स्टोर नहीं रखेगा तो बॉडी में ब्लड हमारा घूमता रहेगा, हमें इंसोम्निया प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें नींद नहीं आएगी। जिनके लीवर काम नहीं करते उनसे पूछो, उनको नींद नहीं आती क्योंकि उनका ब्लड स्टोर ही नहीं होता रात को। सुबह लीवर हमारी बॉडी में, जैसे ही हम जागते हैं ऑटोमेटिकली लीवर हमारी बॉडी में ब्लड को छोड़ देता है ताकि हम एक्टिव मोड पे आ जाए, हमारी बॉडी काम करना शुरू कर दे। ये तो हुआ लीवर के अच्छे होने का प्रमाण, जब हमारा लीवर सही तरीके से चल रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। आपको ये पता है कि लीवर आंखों में दिखता है, आंखों में लीवर है, और नाखूनों में भी लीवर दिखता है। नेल्स से पता चल जाता है कि लीवर में कितनी एनर्जी है, कितनी ताकत है। अगर लीवर डिस्टर्ब हुआ तो ये मेरे ख्याल से सभी को पता है कि गुस्सा, क्रोधी हो जाता है इंसान बहुत, उसका सिर्फ हेडेक तो होता ही है, उसको क्रोधी भी हो जाता है, वो बात बात पे गुस्सा, बात बात पे एंजाइटी उसको होती है। एक तो होती है कि हर बात थोड़ी देर बाद ही गुस्सा आया, क्रोध आया और आके चला गया, उसको तो एक्यूट की कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि आया गुस्सा चला गया, नॉर्मल है ये। इसमें लीवर इतना बुरी तरह प्रभावित नहीं होता। अगर वो क्रोध गुस्से में कन्वर्ट हो जाए, यानी गुस्सा ही बन जाए, तो वो क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। क्योंकि गुस्सा बने रहना, आके चला जाए तो एक्यूट है, उसका इलाज बहुत इजीली हो जाता है, हंस के भी टाल सकते हैं हम लोग। पर वही गुस्सा हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो लीवर की परेशानी का है, क्रॉनिक बन जाएगा। क्योंकि हम गुस्से की तरफ ध्यान नहीं देते, कोई रूठ गया 2 महीने 4 महीने हमने बात नहीं की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर्सन को फर्क हो सकता है पड़ता हो, तो उसकी वो बीमारी बन जाएगी। ये तो क्लच का काम बता दिया मैंने कि लीवर का क्लच तक किस तरह से क्रोध से कन्वर्ट होकर गुस्सा परेशान करता है। अब यहाँ से स्प्लीन का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब वो क्रोनिक रूप धारण कर लेता है ना, तो वो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस आ जाती है यहाँ दिमाग ब्रेन पे, गुस्से ने स्ट्रेस का रूप ले लिया, हर वक्त सोचते रहना, दिमाग को परेशान करते रहना, उससे स्ट्रेस हुआ। अब स्ट्रेस जैसे ही आता है ना, हमारी बॉडी और माइंड उसको समझते हैं, उसको फील करते हैं, वो बॉडी माइंड एकदम अलार्म पॉइंट समझते हैं कि स्ट्रेस आ गया, जाग जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप, दूसरी स्टेज पे पहुंच के वो गुस्से को इसको स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, स्ट्रेस तो यहाँ होता है आप सबको पता है, उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए वो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हेल्प लेते हैं, बॉडी और माइंड। फिर थैलेमस को मैं कहानी की ही भाषा में बता रही हूँ, थैलेमस को ऑर्डर करते हैं कि किसी तरह से पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को और सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जिस जिस जगह भी परेशानी आई हुई है, उनको सिक्रीशन का, उनको स्टिमुलेट करो, सिक्रीशन करो अपने अपने हार्मोन्स, ताकि वो स्ट्रेस लेवल हमारा ये खत्म हो। अगर स्ट्रेस लेवल रह गया तो एक्सीलेटर देखो ना, कि एक्सीलेटर पे स्ट्रेस में आपने ब्रेक लगानी थी, वहां रेस दे दी बढ़ा दी, रेस से गाड़ी किसी ना किसी जगह के टकराएगी, एक्सीलेटर से परेशानी। उसी तरह हमारा स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ा तो हमारा कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, नहीं डैमेज हुआ तो हम रिश्तों को खराब कर लेंगे, कुछ बीमारियां पैदा कर लेंगे। इससे आगे अब आते हैं किडनी, कैसे स्प्लीन ने स्ट्रेस लिया, बहुत बुरी हालत हुई, अब स्ट्रेस का असर ब्रेक पे पड़ेगा। ब्रेक पे कैसे पड़ेगा कि या तो उस स्ट्रेस लेवल की वजह से ब्लड हमारा फ्लो नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, जो किडनी ने यूरिन को या जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको छानना था, उनको एब्जॉर्प्शन पावर जो उसकी थी वो कम हो जाएगी। वो उनको या तो किडनी यांग में अगर परेशानी आ गई, किडनी यांग डिस्टर्ब हो गई हमारी, तो यूरिन हमारा रुकेगा ही नहीं, ओपन हो जाएंगे स्फिंक्टर, बॉडी के फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो यूरिन ही पास होता रहता है, ड्रिबलिंग यूरिन हो जाता है। बहुत कहीं भी छींक भी मारी है तो बहुत जनों से सुनने में आता है कि उनका यूरिन पास हो गया, खांसी से ये यूरिन पास हो गया, क्योंकि उनके स्फिंक्टर कमजोर हो गए, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल लिया, किडनी पे असर आया, किडनी ने काम करना कम कर दिया। अगर किडनी इस दिन डिस्टर्ब होती है तो यूरिन के जो डोर हैं वो ओपन ही नहीं होंगे, उनमें इतनी ताकत ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी वाली रहती कि वो आराम से ओपन होए और यूरिन आराम से पास हो जाए। तो वहां पे यूरिन हमारा स्टोर होना शुरू हो गया, बॉडी में पानी इकट्ठा, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हुआ जब, तो एडिमा, एडिमा क्या, फिर तो यूरिन पास करवाने के लिए, किडनी की डायलिसिस करवाने के लिए किडनी के लिए जाना ही पड़ता है। डायलिसिस पे बंदा चला गया, फिर तो डॉक्टर के पास पहुंच गया, और एंड ये इन चीजों से कितनी
हम शुरू से ही कितने अच्छे से बच सकते हैं अगर हम लीवर का भी ध्यान रख लें, गुस्से पे कंट्रोल करें, गुस्से पे स्ट्रेस को आने ना दें, सारे सिचुएशन जितने हुए हैं उनको भी फील करें, ट्रीटमेंट भी करते रहें। ये तो ट्रीटमेंट कल आपको बताएंगे कि इस तरह से इन चीजों में डिस्टर्बेंस अगर आती है तो किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक छोटी सी ये है बात कि किडनी जिन अगर आपका डिस्टर्ब हुआ, एक सिंपल है ये एक फंडा, अगर किडनी जिन, क्योंकि किडनी हमारा जीवन सत्य है, प्री बर्थ प्री नेटल एनर्जी और आफ्टर बर्थ के बाद हमारे साथ किडनी ही शुरू से चलती आ रही है। जैसे किडनी जिन डिस्टर्ब हुआ, पूरी बॉडी के ऑर्गन आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमेशा अपनी किडनी पे ध्यान रखें कि कहीं कोई बालों में बिना बात के सफेदी तो नहीं आ गई, आईब्रोज में, आई लैशेज में सफेदी तो नहीं आ रही, दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कानों में तो नहीं दिक्कत आ रही। इन चीजों को छोटा मत समझे, इन चीजों को बहुत बड़ा माने, इन चीजों का ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी करें। किडनी की परेशानी से सारे ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं जिन की, और अगर किडनी यांग डिस्टर्ब हो गया तो सारी बॉडी के ऑर्गन, यांग ऑर्गन उनके बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक साल में नहीं, कुछ सालों में हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपकी बॉडी को कमजोरी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, ये समझ लीजिए। क्योंकि बॉडी अपना रिपेयर खुद करती है ऑर्गन के हिसाब से, ऑर्गन ग्रोथ के हिसाब से, तो उसको टाइम लगता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अर्दली एनर्जी हमारी इन जिन और है, और हेवनली एनर्जी हमारी यांग है। तो यहाँ पे जैसे लीवर डिस्टर्ब होता है ना, तो एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ती है सारी स्ट्रेस। तो यहाँ पे डिस्टर्ब, क्योंकि लीवर यांग यहाँ पे भी है हमारे इस ऊपर वाले पोर्शन में, लीवर जिन तो हमारा बॉडी नीचे है पैरों में, और यहाँ से स्ट्रेस पूरा थैलेमस ग्लैंड, सारी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब इसीलिए करता है, और हॉर्मोन्स को। तो कोशिश करें अपने आप को इन चीजों से बचा के रखें। अब आपको पीपीटी की हेल्प से शुक्ला जी और अच्छे से क्लियर करती हैं। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू शुक्ला। Sure. Okay, so let us see the location of liver, spleen, and kidney on pure. All right. So see, again, this is the first joint. Let us start with liver. This is the first joint, and this is a second joint. Now, from here on the top, you have to keep little area empty. I mean, like you have to make a line from here. Okay. So make equal distribution so that it is easy for you to plot it. Well, I had, actually drawn the lines, but then I think it is not visible here. So after making the sections, then you can see here we have liver 1. Next to liver 1, we have liver 2. Then we have liver 3. And on the first joint, we have liver 4. This is spleen. Now, spleen is right in the center. Make a straight line. Make equal sections. Leave the top area empty. And then make equal sections and plot. Now, this is SP1. This is SP2. This is SP3. And this is on the first joint, we have SP5. Now, this is the plotting of kidney. Kidney 1 and kidney 2 is together. Okay. So on the side, and when you make the straight line, it should be visible from front. Okay. It shouldn't be on the, on the border. So kidney 1 is here, kidney 2 is here, kidney 2 is a fire point. Kidney 3 is before the joint. I mean, like just little bit above the first joint, and kidney 7 is below the first joint. I hope it is clear now. Okay. All right. So I'm sure everyone must have driven a car, right? And what do you think? How many parts are important in a car? To balance the car, to control the car, to drive the car, to stop the car. Yes, we have accelerator, brakes, and clutch, right? Now, today we discuss spleen, kidney, and liver, right? So all these three organs, of course, all the organs are important, but these three organs are powerful and they are really very important. Now, what we have done is we have, made it in an easy way so that you can understand. So just remember A, B, C. Now, what is A? A stands for accelerator, B stands for brakes, and C stands for clutch. Now, accelerator of our body is spleen, brakes of our body is kidney, and the clutch is liver. Okay.
Now, everyone knows that when we drive a car, the clutch plays a major role. It has a very important role because without which you cannot balance or control the car. Okay. If you have to give the race also, you need clutch. If you want to stop the car also, you need clutch. Okay. So clutch is very important. Similarly, in our body, liver plays the role of a clutch, and it is very, very important. Now, everyone knows that whatever that we eat food, the food is converted into glucose, and this glucose is stored by liver. This is the major function of liver. Okay. Now, what happens? What happens if the liver doesn't store the glucose in the form of glycogen? What will happen? There will be loss of energy. All right. The second job of the liver is that it stores the blood in the night. I wouldn't say extra blood, but then yes, it stores the blood in the night, so that because if the blood flows continuously in the body in the night, we won't be able to sleep. Okay. So what happens is when the kidney stores the blood in the night, people are able to sleep. Supposing if your liver is not functioning properly, then those persons, they suffer from insomnia. Now, next what happens is when the liver is disturbed, okay, what happens that, or I should say it this way, that liver gets disturbed when we get angry too much. Okay. The form of, we have two types of anger. One is just getting angry, hey, why you did this, oh, why you don't do that. Okay. But when this when this anger, when it is it becomes chronic, that is very, very dangerous, because that gives rise to stress. Now, what happens when stress happens? Now, when the stress comes into picture, now the spleen takes over. How? What happens? Now, when we have stress, we have that in two levels. The first level is the moment we have stress, our body and our mind, it becomes alert that, oh my God, oh, okay, some stress has come. Now we have to, balance it. What the body and mind does, it stimulates the endocrine glands. It stimulates the endocrine glands and says that, look here, there's stress coming. So we have to balance it. We have to control it. Okay. So what the king of the endocrine glands, that is a thalamus, tells pituitary gland and the pineal gland and the respective glands to control the stress level. Now, if the brakes is that, if there is no oil in the brake, the brakes won't work. Similarly, if there is no fluid in the body, the kidney will not work. This is how the kidney gets affected. Now, this is how everything is interrelated. That is, liver, spleen, and kidney is interrelated. Now, it is very, very important to know that all the yin organs is controlled by kidney. So supposing if the kidney yin is disturbed, all your yin organs will be disturbed. And all the yang organs are controlled by kidney yang. So supposing if your kidney yang is disturbed, so all your yang organs will be disturbed. So this is how it is all interrelated. It is very, very important to catch the disease, catch the problems at the very first stage. You shouldn't allow that stage to cross all the levels, because if kidney gets damaged, everything gets damaged. So taking care of kidney is very, very important. You have to balance yourself, do some meditation, relax yourself, because today everyone is so much stressed because of a lot of work to do, and because of this COVID and multiple problems everyone faces. So what happens is our liver is affected. So once the liver gets affected, so this is how the cycle works, and this is how then the disease forms. So we need to balance ourselves at times. Okay, and this is all for today. This is we have tried to explain it in a simple way. लोकेशन पूछी है SP6 की K10 की पीपीटी के, उनसे पीपीटी के हेल्प से चाहते हैं, या चलिए मैं उनको ना SP6 की एक बार लोकेशन देती हूँ. ओके, ठीक है. K10 and SP6 on body. हाँ बिल्कुल. देखिए
से चेक करना पड़ेगा मुझे। मेरा मोबाइल तो यहाँ से 1 सेकंड वेट करना प्लीज, मुझे मोबाइल सेट करना पड़ेगा दोबारा से। देखिए ये मीडियल मेलुलस क्लियर से दिख रहा है, Yes. ये वाला एरिया। Yes. इससे हम 4 फिंगर, आपने 4 ये वाला एरिया है मीडियल मेलुलस, यहाँ से आपने 4 फिंगर ऊपर जाना है और देखिए यहाँ पे इस वाला जो के से पहले किडनी 3 से पहले वाला जो आपका मीडियल मेलुलस का एरिया आता है ना, यहाँ से आपने सीध में जाना है 4 फिंगर की दूरी पर। हाफ मेलुलस पे आपकी फिंगर रखी हुई हो तो ये है हमारा SP6, ये है हमारा SP6। यहाँ से ये मेलुलस है, मेलुलस की ये वॉल है, साथ ही इससे उठाते हुए ऐसे के वाली लाइन किडनी की पीछे है, यहाँ SP की है और लीवर की यहाँ से जाती है। ये वाली जो बोन है इसके बिल्कुल मेलुलस से यहाँ से आप एंट्री करोगे तो ये लीवर वाली एरिया है, ये SP वाला एरिया है, ये किडनी है। ये तीनों यहाँ पे आके मिलती हैं, इनकी एनर्जी SP6 पे आके मिलती है। और अब K10 का भी किसी ने पूछा था, तो बहुत इजी वे में ये बताना है कि ये देखिए टांग अपनी इस तरह से इकट्ठी करनी है, बिल्कुल जो ये वाले पॉइंट आपका यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन सी दिखेगी बंद करने के बाद इस तरह से, तो ये आपका पॉइंट है K10, या इस तरह से जैसे UB54 यहाँ होता है उसी लाइन में इसी क्रीज पे ही आपका K10 पॉइंट है। ये ज्यादा दूर आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल फोल्ड होता है घुटना, वहां पे है पेट। और कोई कंफ्यूजन है तो देखो अभी क्लियर हो जाएगी। I think it's almost clear. ओके So this is a small, effort that we did so that, things can be clear. Let me just check the messages if there is any query. Mobile number, I have given the mail ID, so you can contact us on the mail. Yeah, so I think it's almost clear. So this is all for today. So tomorrow at the same time, we will be doing the yang meridians, and then we will be discussing something more about it. All right, so thank you so much, sir. Ravindran, sir. Yeah. Thank you very much, madam. Really another wonderful session. I'm sure, it was very, from the point of view of utility, it is of immense value. Okay, Really, thank you. yeah, Thank you so really great. It gives so much of clarity and confidence to know the exact location so that, students will be able to practice it. The wonderful session, really, I liked it. And, one small important announcement is there. Tomorrow, Zoom ID will change. I'm going to share it in all the groups. Same time, we'll, with a different Zoom ID, I'm going to share it in all the groups. And, madam, Yes, all sir. the students and Ravindra is also, demanding that you should continue the session. Okay, sir. We'll discuss it and I'll tell you what, how to take everybody to the second level. I mean, some more points are also there, which are very important from the point of view of preparing a protocol, Yes, like sir. clip connecting point, Z-clip point, Yes, sir. and influential point. Along with these 5 shoe points, if they know these three things, I'll give a formula within which any disease will fit in. Yes, So sir. it will be of immense help, and I want, I'll discuss with you and then, we'll announce it. Sure, If sure, you don't sir. mind. Huh? Definitely, sir. Both of you are like Ganga and Yamuna, I should say. Oh. Lovely, beautiful Thank session. Disha Thank you, ji, sir. namaste Thank once you. again. Thank you so much, sir. Yeah, we'll catch up tomorrow. Sure, sir.
Thank Okay. you, sir. Thank Thank you, you. everyone. Thank you, Priyanka ji. Okay.